Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammed Yusuf. Today I am going to talk about the arterial pulsation. But as per my routine, one ayah from Holy Quran, Surah Al-An'am, ayah number 151. This is a part of the ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما बतन कि बेहयाई बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, यानी किसी एस्पेक्ट में जिसमें बेशर्मी का चांस हो उसके करीब ना जाओ, करीब ना जाए। एक तो बेशर्मी की बातें मत करो, ये नहीं, उसके करीब भी ना जाओ। वला तकरबुल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा, चाहे वो ज़ाहिर ज़ाहिर पर वादे तौर पर एक बेहयाई हो या उसकी खुफिया खुली हो या छुपी हुई हो, मा बतनाई, या जिसके बातन में बेहयाई हो उसके करीब भी ना जाओ। यानी कोई ऐसी बात जो उस बेहयाई की तरफ ले जाने वाली बात हो उसके करीब भी ना जाओ। इसकी मिसाल हमारे इस्लाम में जो हमारा पर्दा है, औरत का जो पर्दा है और सेग्रीगेशन बिटवीन दी सेक्सेस है कि मर्द अलग है, उनका अपना सफियर है और औरतों का अलग सफियर है, ये भी एक है फाइनल बेहयाई को रोकने के लिए एक तरीका है। पहले सेग्रीगेशन कर दी, फिर पर्दा करवा दिया और फिर और हुक्म दिया कि बातें करो तो ऐसे करो कि उसके करीब भी ना जा सके। फाइनल तो रिजल्ट बेहयाई उसका जो है, पर्दे का, उस बेहयाई को रोकना है। तो ये कि बेहयाई की किसी बात के करीब भी जाने के, कोई भी बात फाइनली विच कैन लीड टू दी फवाहिश, उससे बचने का अल्लाह पाक हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So I'm going to talk about arterial pulsation. Blood flow in the arteries is mostly pulsatile, especially in bigger vessels. Blood is pushed into the aorta and it expands. Because of that increased extra volume loaded into the base of the aorta, which flows in the vessels and the pulse is produced. So increase and decrease pressure is there in almost all the vessel blood arterial tree. Even the medium-sized arteries, smaller arteries, pulsation we can feel increase in during systole, increase in pressure during systole, and decrease in pressure during diastole. So this is known as arterial pulsation. Blood flow in the arteries is pulsatile. That is increase and decrease during systole and diastole of the cardiac side. This is because of, again, we discussed in the previous lecture, vascular distensibility. Vascular distensibility, arteries are also distensible and they expand. A pulse is produced, physical pulse is also produced. One is pulsatile, increase and decrease pressure. But one pulse is there is expansion and then contraction, both. That is also a pulse, जो हम feel करते हैं at the radial pulse. That is the expansion of the arteries and then opposite. So this is also distensive. This is because of distensibility. If the arteries were made up of the solid tubes, then this pulsation would have was not possible. It could. So this distensibility of the arteries is responsible for the physical pulsation. Now this physical distensibility of the arteries, previous lecture में भी हमने बात किए थे, इसका importance is this: in arterial distensibility is responsible for accommodation of this extra blood at the base of the aorta. 70 ml of the blood is pushed with each contraction, so this can be accommodated by the expansion of base of the aorta. So this accommodates blood during systole. सारी आर्टरी को यही बात है, blood is being pushed and they expand and they can accommodate extra blood. Plus ये भी कल लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि this arterial distensibility and elasticity is responsible for the smooth flow of the blood even during diastole. Diastole में when heart is not pushing the blood,
Flow in the arteries and the circulation continues because of the recoil of this elastic. They are distended by the increased volume and pressure, and their recoil of those arteries causes helps to flow the blood during diastole. So this distensibility is important. No flow during diastole if the arteries were not distensible. If they were made up of lead pipe, say, अगर लेड पाइप की तरह हो, if you start a pump which is pulse style, अगर pump आपका pulse style है कि it is pushing the water and then it is not pushing the water, when it is pushing the blood it will flow, when it is not pushing the blood water will stand. तो जब इस तरह का पंप हो, so if the heart is such a pump that it pushes the blood and then there is no push. That is, during diastole there is no blood entering from the heart or pumped by the heart into the aorta. So अगर ये rigid होते, pulse style distensible ना होते, तो then diastole में blood would have stopped. Flow उसका खत्म हो जाता. Pulse style flow. Now this sentence has been added. ये तो उसके अंदर distensibility of the arteries की importance की बात थी. Now pulse style flow gradually reduces as we move from the aorta to bigger arteries to then smaller arteries, the medium sized arteries. This pulse style flow gradually is reduced. This we are going to talk about today. ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे कि ये ग्रेजुअली रिड्यूस होता है एंड इट इज एब्सेंट इन कैपिलरीज. हमने डायग्राम भी देखी हुई, दोबारा वो डायग्राम आ जाएगी. So pulsatile flow gradually reduces as we move from the aorta to the smaller vessels. No pulsation in the capillaries, as I have just said. तो ये कैसे होता है, किस पे डिपेंड? This is known as damping of the pulsation. Pulsation इस आर्टरी में pulsation फील होती है, लेकिन और उससे छोटी आर्टरी में, आर्टरियोल में, कैपिलरी में तो है ही नहीं, pulsation is not felt. ये डायग्राम हमने पहले देखी. दिस इज एआर्टिक पल्सेशन, देन द फेमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी पल्सेशन. आप देखें पल्सेशन इज बीइंग रिड्यूस्ड. Difference between systolic pressure and diastolic pressure is being reduced. पल्सेशन थोड़ी हो गई है. फेमोरल आर्टरी जरा बड़ी एआर्टा में तो वहां से शुरू हो रही है. एंड इन आर्टेरियोल्स some pulsation may be there, but there is no exact pulsation like this कि हर कार्डिक साइकिल के साथ पल्सेशन आर्टेरियोल में फील हो. Some difference may be there, but in capillaries there is almost no pulsation. So this pulsation is reduced as we move from the bigger arteries to the smaller arteries. और वेन तो पॉसिबल ही नहीं है. वेन में तो कैपिलरीज के बाद है, पल्सेशन कहाँ से आएगी? दैट इज कंटिन्यूअस फ्लो. एआर्टिक प्रेशर कर्व. This pulsation, when we record this pulsation in aorta, this diagram, aortic pressure curve, I discussed when we were discussing the cardiac cycle. Aortic pressure curve, the same as we are going to. This is aortic pressure curve. That is, during diastole, the pressure in the aorta is 80 millimeter of mercury, and during systole, it is pushed to this level, slow rise and then peak. वो तो हमने cardiac cycle की phases पढ़ी हो, and the rapid ejection phase, then the slow ejection phase. उसके साथ हमने ये बात की थी. उसको हमें we have understood. Now this pulse is produced in aorta. This is the rapid ejection phase, slow, then the incisor is there because of the closure of those valves. And then during diastole the pressure falls. The diastole में blood is not being pushed into the aorta. और ये pressure fall aorta में क्यों कर रहा है? Elastic recoil is pushing the blood onward and there is reduction in the pressure to same level. Every cardiac cycle there is this much 0.8 second का cycle होता है लिखा. So this is the aortic pressure curve. Systolic pressure is 120 millimeter of mercury. Topmost pressure, systole के दौरान the maximum pressure which is produced is 120 millimeter of mercury, and diastolic pressure is 80 millimeter of mercury. ये वहाँ पे भी discuss किया था, you can see it. So this is aortic pressure curve. Pulse pressure, probably we didn't discuss it. Pulse pressure is a term given to the difference between these two, systolic and diastolic pressure. If the systolic pressure is 120, diastolic pressure is 80, 120 minus 80, this difference between these two is known as pulse pressure. Pulse pressure is systolic pressure. How we calculate it?
वैसे तो आसान बात है ना, इट इज दी पल्स प्रेशर इज सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, इट इज दी 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये एक और प्रेशर भी हम बात करेंगे, मीन आर्टियल प्रेशर, उसको हम अलग से कहीं देखेंगे, आगे हम आएगा इंशाल्लाह। सो पल्स प्रेशर क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। नाउ पल्स प्रेशर कितना होगा? एआर्टा में तो हमने देख लिया इट इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 120/80 का अगर सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिफरेंस है। ऑफ कोर्स इफ द प्रेशर इज सिस्टोलिक प्रेशर इज 130 और डायस्टोलिक प्रेशर इज 70, तो वो तो 60 हो गया, डबल हो जाए। सो पल्स प्रेशर नॉर्मल हम बात करें इट इज 40। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। Stroke volume is the volume of the blood pumped in one contraction. One contraction में जितना blood pump होता है, that is known as stroke volume. You can imagine if the stroke volume is 70 ml of blood is being pushed, to the 120 millimeter of mercury pressure is produced. If 90 ml is pushed, naturally there will be increased systolic pressure. So the systolic pressure बढ़ गया, diastolic को अभी हमने नहीं छेड़ा। Increase in systolic pressure will result into the increased pulse pressure. Difference बढ़ जाएगा। It is directly proportional to stroke volume output. 70 ml के बजाय 80 ml, 100 ml हो जाए। More forceful contraction, Frank Starling साहब ने पढ़ा हुआ है। More forceful contraction will result into the more stroke volume. Stroke volume भी बढ़ेगा, so इससे pulse pressure भी बढ़ेगा। And it is inversely proportional to compliance. Last lecture में हमने compliance की बात की थी। More compliant vessel अगर होगा तो उसमें pulse pressure कम होगा। मिसाल के तौर पर more compliant vessel कौन से हैं? Aorta is not good compliant vessel. Veins are more compliant vessel. उनकी compliance ज्यादा है। Compliant vessel, veins are more distensible. मोर कंप्लायंट वेसल, टोटल वॉल्यूम भी ज्यादा उनका ज्यादा, कंप्लायंस उस पे भी डिपेंड करती है, हमने डिस्कस किया हुआ है। से एआर्टा की बजाय अगर वहां पे वेन लगी होती, आर्टरी के बजाय उस ब्लड इज बीइंग पुश्ड इनटू वेन्स, अगर एआर्टा ना होती, वहां कोई वेन लगी होती, व्हाट वुड हैपन? वो जो 70 ml से 60 ml ऑफ ब्लड जो पुश होता उसमें, वो तो उसके एक्सपेंड करके प्रेशर तो ना बढ़ने देती। They can accommodate, they can distend, and the pressure is average. एआर्टा भी फैल के थोड़ा सा प्रेशर कम करती है, वेन तो बहुत ज्यादा फैल, 70 ml ब्लड पुश होता, वो फैल जाती, तो अगर 80 था पुश करने से पहले तो 85 हो जाता। It would have not gone to 120 millimeter of mercury. So if the vessel is more compliant, or the segment of the blood vessel is more compliant, वहां पे pulse pressure कम हो जाएगा। It is inversely proportional to compliance. It is directly proportional to the stroke volume, and it is inversely proportional to compliance or total dispensability of the systemic vessels. Systemic vessel मिसाल के तौर पर, if the arteries भी compliant हैं, less compliant हैं as compared to veins, arteries की बात करें, उनकी नॉर्मल कंप्लायंस जितनी भी है, डिस्टेंसिबिलिटी पे डिपेंड करती है। उनकी डिस्टेंसिबिलिटी जितने भी परसेंट है, और टोटल वॉल्यूम जो उसमें अबाउट कितना 24% या 22% जितना भी आर्टरीज में ब्लड होता है, वो डायग्राम याद रखें कि कितने परसेंट ब्लड आर्टरीज में है। 64% तो वेन्स में है ना, 7% उधर, 16% इन पल्मोनरी फील्ड एंड लंग्स में है, बाकी जो आर्टरीज में है, कैपिलरीज वाले को छोड़ के। टोटल वॉल्यूम जितना भी है 20% या 22% ऑफ द टोटल ब्लड, अगर इनकी कंप्लायंस कम कर दें नॉर्मल से, सॉरी, इफ यू रिड्यूस द कंप्लायंस कैसे कम हो जाएगी? डिस्टेंसिबिलिटी कम हो जाए। वेन्स आर मोर कंप्लायंट बिकॉज दे आर मोर डिस्टेंसिबल, ज्यादा डिस्टेंसिबल होने की वजह से वो मोर कंप्लायंट है। Arteries are distensible, but much less distensible, 10 times less distensible than the venous distensibility, 1/10, 1/8. But if they become more rigid, for example, in elderly people, elasticity is lost, so they become less compliant, so pulse pressure will increase. अगर कंप्लायंस ज्यादा है तो पल्स प्रेशर विल रिड्यूस, कंप्लायंस
कम हो जाए पल्स प्रेशर विल इंक्रीज, तो बूढ़े लोगों में पल्स प्रेशर का फर्क बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे दे आर नॉट एक्सपेंडेबल, उनमें सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर भी फर्क पड़ेगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्लायंस। समझाने के लिए मैंने एग्जांपल वेन लगा के भी बता दी और आर्टरीज को रिजिड करके भी एल्डरली पीपल में बता दिया, उसमें कंप्लायंस सॉरी inversely proportional to compliance are total distensibility of the systemic arteries, systemic vessels। अगर वो डिस्टेंसिबल ज्यादा कम हो जाए तो पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, ज्यादा डिस्टेंसिबल हो तो पल्स प्रेशर विल बी रिड्यूस। सॉरी, So pulse pressure difference between systolic and diastolic जो 40 है, it is directly proportional to stroke volume and inversely proportional to compliance of the vascular tree। पल्स प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, अब इन दोनों को मिला के हम एक फार्मूला बनाने लगे हैं। पल्स प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, इट इज pulse pressure is directly proportional to stroke volume divided by compliance, ratio of the stroke volume to compliance। तो ये जो पिछला जो वर्ड्स में लिखा हुआ है, pulse pressure is proportional to ratio of stroke volume to compliance, उसको मैथमेटिकली यू एक्सप्रेस करेंगे, pulse pressure is proportional to stroke volume over compliance। अब ये दो बड़े फैक्टर पल्स प्रेशर को डिटरमिन करेंगे। अब ये इसको हम अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट कंडीशन के पल्स प्रेशर किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर ये बढ़ गया तो पल्स प्रेशर विल इंक्रीज, अगर ये बढ़ गया तो पल्स प्रेशर विल रिड्यूस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो पल्स प्रेशर कम बढ़ेगा और ये कम होगा तो पल्स प्रेशर कम होगा, ये कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पल्स प्रेशर बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो पल्स बढ़ेगा तो पल्स प्रेशर विल बी रिड्यूस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे हम अप्लाई करते हैं। तो पल्स प्रेशर मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आर्टीरियो स्क्लीरोसिस है, वो जो अभी मैं बता रहा था कि बूढ़े लोगों में वेसल्स बिकम रिजिड, नैरोड, इलास्टिसिटी इज लॉस्ट in elderly people। Arteriosclerosis is the narrowing of the blood vessel and loss of rigidity of the blood vessel। Atherosclerosis process causes the deposition of the cholesterol, उसमें narrow भी हो जाते हैं और with the advancing age उनकी elasticity, distensibility भी कम होती जाती है। That is known as arteriosclerosis। They are not less distensible और resistance भी उसमें ज्यादा है। So there will be increased pulse pressure due to less compliance। अभी मैंने एग्जांपल दी थी ना, because of this arteriosclerosis, elderly people, arteries also become further reduction in their compliance। वो पहले से कम है वेन के मुकाबले में, further reduction because of the loss of distensibility or elasticity उनकी कम उनसे। So because of this less compliant है तो इट विल बी पल्स प्रेशर विल इंक्रीज। अभी हमने देखा है इट इज पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्लायंस। कंप्लायंस कम हो जाएगी तो पल्स प्रेशर विल इंक्रीज। सो नैरोड इन इलास्टिक आर्टरीज में कंप्लायंस कम होती है तो पल्स प्रेशर ज्यादा होता है। आगे अब डायग्राम में भी एक्सप्लेन करूंगा, आगे डायग्राम में। फिलहाल ये देख लें दूसरी कंडीशन, एआर्टिक स्टेनोसिस। व्हाट इज दैट? अ डिजीज इन विच द एआर्टिक वाल्व इज नैरोड। स्टीनोसिस का ही जिक्र किया था कार्डिक साइकिल में मैंने। एआर्टिक स्टीनोसिस हार्ट साउंड्स में मैंने मरमर्स के साथ एआर्टिक स्टीनोसिस का जिक्र किया था, इफ यू हैव अटेंडेड माय लेक्चर्स ऑन हार्ट। नैरोइंग ऑफ द एआर्टिक आर्ट, क्या मतलब? एआर्टिक वाल्व इज नैरोड, लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड थ्रू दिस नैरो वाल्व, तो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। सो इट इज रिड्यूस्ड because pulse pressure is directly proportional to stroke volume। aortic stenosis में stroke volume 70 के बजाय 70 ml of blood push करना चाहिए, वो नैरो होने की वजह से चांसेस है less blood is being pushed, वो जोर लगाता है ब्लड कम पुश होगा फॉर एग्जांपल। तो अगर ज्यादा पुश हो भी तो प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से पुश करेगा। सो डिग्री
aortic stenosis because of reduction in the stroke volume. There is inward उसकी relationship, it is directly proportional to the stroke volume. Stroke volume कम हुआ है तो this will be also be reduced. So pulse pressure is reduced in aortic stenosis. PDA is patent ductus arteriosus. वो if you must have some knowledge, उसमें भी जिक्र किया था. I had talked about the patent ductus arteriosus. That is a vessel present in the fetal life. It is a connection between the aorta and the pulmonary trunk. वो बंद हो जाता है पैदाइश के बाद. दैट वेसल इज क्लोज्ड. सेकंड ईयर के लेक्चर मेरे ऑनलाइन है, मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है नियोनेटल फिजियोलॉजी में हाउ दिस पीडीए डक्टस आर्टरियोसिस इज क्लोज्ड. इफ यू आर इंटरेस्टेड, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, माय लेक्चर्स आर देयर इन नेट. जो रिप्रोडक्शन पे मैंने लेक्चर दिए हैं नियोनेटल फिजियोलॉजी में, आई हैव टॉक्ड अबाउट द क्लोजर ऑफ दिस डक्टस आर्टरियोसिस. इफ इट इज नॉट क्लोज्ड, it is normally closed within 1 week after birth. चंद दिनों में, एक दिन में बंद हो जाता है, लेकिन 1 week तक तो बंद हो जाता है. 85% 90% लोगों में बंद हो जाता है. So there is increase pulse. PDA क्या है? That is a vessel between the aorta and the pulmonary trunk. Intrauterine life में blood flows from the pulmonary trunk into the aorta. क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है और एआर्टा में कम होता है. दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. फीटल सर्कुलेशन अलग से कहीं पढ़े, अगर पढ़ी हुई है तो फिर आपको समझ आ जाएगी. लेकिन बेसिक के इंट्रायूट्राइन लाइफ में ब्लड फ्लोज फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द एआर्टा बिकॉज लंग्स आर क्लोज. वो कोलैप्स हैं, ब्लड उसमें नहीं जा सकता. दिस ब्लड बाय, उसके लिए अल्लाह ने एक शंट बनाया हुआ है. दैट इज ब्लड इज शंटेड फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक इनटू द एआर्टा. लंग में जाना नहीं है उसने. लेकिन आफ्टर बर्थ the pressure in the aorta is more than the pulmonary artery, then the blood flows in the reverse direction. If it remains open, blood will continue to flow. एक बच्चा 4 साल का हो गया, बड़ा हो गया किसी में, वो तो blood will be flowing there. तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा? This extra blood which is coming into the pulmonary artery, पल्मोनरी पहली बात तो ये देखें, ये एआर्टा की शुरू में, एआर्टा में पुश हुआ था, ब्लड पुश होता है फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल 70 ml. इसमें 70 ml नहीं होता, ज्यादा होता है. मैं फिलहाल 70 ml बता रहा हूँ. 70 ml ब्लड पुश हो इनटू दी एआर्टा. उस एआर्टा के साथ सारी सर्कुलेशन में जाने के बजाय उधर भी जाएगा, लेकिन ये पास ही एक वेसल पड़ा हुआ है, पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, तो डायस्टोलिक प्रेशर तो वहां कम हो जाएगा. ट्रेमेंडस फॉल इन द डायस्टोलिक प्रेशर विल अकर. डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? पल्स प्रेशर विल इंक्रीज बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर 120 भी हो, लेकिन ब्लड यहां से करीब ही एक वेसल पड़ा हुआ उधर निकल गया तो ये जगह खाली हो जाएगी. प्रेशर इन द एआर्टा विल फॉल ट्रेमेंडसली. तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 भी हो तो वो तो 60 पर चला जाएगा, 40 पर चला जाएगा बिकॉज ब्लड वहां से निकल गया. लेकिन इंपॉर्टेंट बात और देखें, जिस ब्लड जो निकल के पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा, ये कहां जाएगा? इट विल गो इनटू द लंग्स. लंग्स में जाएगा. लंग्स में नॉर्मल राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड भी जा रहा है और ये फालतू ये भी जा रहा है, तो लंग्स की सर्कुलेशन बढ़ गई है. और ये लंग से वापस आके कहां आएगा? इट इनटू द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ये ज्यादा ब्लड जमा होगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम विल नॉट बी 70. ये एक्स्ट्रा है. फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में पता है, जितना ज्यादा ब्लड फिल करेंगे उतना फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज आल्सो मोर. तो इस कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम इज ट्रेमेंडसली इंक्रीज बिकॉज ऑफ मोर ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स. वो जो शंटेड ब्लड पीडीए से जा रहा है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से जा रहा है, दैट इज आल्सो रिटर्न बैक टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्ट्री में 110 और 120 ml के बजाय 150 ml होगा उसमें. So this will be pushed. Stroke volume will not be 70 ml, maybe 100 ml. तो उसकी वजह से there is increased systolic pressure but very low diastolic pressure because of the shunting of the blood. Increased systolic pressure but decreased diastolic pressure, tremendous rise in the pulse pressure. आगे डायग्राम में देखेंगे. So there is more stroke volume इसमें और less more compliance भी बोल रहे हैं. Blood is being pushed वहां से. डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, कंप्लायंस के साथ ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर इज वेरी लो.
तो इसमें भी पल्स प्रेशर इज मोर। आगे डायग्राम में इन चारों बातों को हम डिस्कस करेंगे। चौथी बात क्या आ गई है? एआर्टिक रिगर्जिटेशन। व्हाट इज दैट? ये एआर्टिक स्टेनोसिस हमने किया, नैरोइंग ऑफ द एआर्टिक वैल्व, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। एआर्टिक रिगर्जिटेशन क्या है? एआर्टिक इनकॉम्पिटेंस। एआर्टिक valve is incompetent, blood regurgitates back into the ventricle during diastole। वो पूरी तरह बंद नहीं होते, blood regurgitate करता है during diastole। जब heart is pushing the blood into the aorta, when it goes into the diastole, aortic valve should close, there should be no entry of the blood from the aorta into the ventricle, नहीं होता ना। लेकिन अगर ये खराब है valve, इनकॉम्पिटेंट हैं, रिगर्जिटेटिंग करते हैं, तो इस विल कहा दी पुश तो हुआ ब्लड काफी बट वापस भी हो गया। उसका क्या मतलब है? डायस्टोलिक प्रेशर विल फॉल। सिस्टोली में जितना प्रेशर पैदा हुआ ब्लड वापस चला गया, तो यहाँ पे प्रेशर फॉल कर गएगा। सो देयर विल बी फॉल इन द प्रेशर। में सिस्टोलिक प्रेशर तो अच्छा खासा होगा, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। देयर विल बी इंक्रीज pulse pressure। डायस्टोलिक प्रेशर कम हो गया ड्यू टू द ड्रास्टिक फॉल इन द डायस्टोलिक प्रेशर, कि ब्लड वापस चला गया। उसमें भी ड्रास्टिक फॉल इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, कि ब्लड डायस्टोली के दौरान जा रहा है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक जा रहा है, और इसमें भी ब्लड वापस इनटू द वेंट्रिकल जा रहा है, फॉल इन द ऑलमोस्ट जीरो। वो अगर रिगर्जिटेट है जो, तो 80 के बजाय 0 हो जाएगा पल्स प्रेशर। यू कैन इमेजिन, आएगा डायग्राम में देखेंगे। सो एआर्टिक रिगर्जिटेशन में देयर इज इंक्रीज पल्स प्रेशर बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस फॉल इन द डायस्टोलिक प्रेशर। इट मे गो टू अप टू 0 ड्यू टू द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम तो है क्यों? ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, इधर से भी वापस जा रहा है। डायस्टोली के दौरान ब्लड ऊपर से तो आएगा जो नॉर्मल फिलिंग है फ्रॉम द हार्ट, और इधर से भी फिल होगा, तो उसमें ज्यादा ब्लड कलेक्ट होगा, तो नेक्स्ट कंट्रैक्शन में स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी मोर। वन ऑन वन हैंड स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर वेरी लो है, 0 तक जा सकता है। तो दैट रिजल्ट्स इन टू ट्रेमेंडस डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। पल्स प्रेशर विल बी वेरी हाई, बड़ा ज्यादा पल्स प्रेशर होगा, इंक्रीज है। नाउ अब ये देख लें, नहीं जरा सा एबनॉर्मल एआर्टिक प्रेशर कर्व्स ये देख लें। ये इन चारों कंडीशन की हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है। पल्स प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उससे ज्यादा होगा, डिवाइडेड बाय द कंप्लायंस। जितनी कंप्लायंस का अगर में ज्यादा होगी तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज नॉर्मल एआर्टिक प्रेशर कर्व, हमने पहली डायग्राम में हमने डिस्कस की थी। डायस्टोलिक प्रेशर इज देयर, सिस्टोलिक प्रेशर इज देयर, देन द डायस्टोली में ये कम होता है, इसमें दोबारा वापस आता है। दिस इज द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व। पल्स प्रेशर इतना बड़ा है, डिफरेंट बिटवीन 80 एंड 120। दिस इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये फर्क कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अगली कर्व arteriosclerosis, blood vessels have become rigid old elderly people में, they have lost elasticity। अगर उसका और प्रेशर अगर डायस्टोलिक नॉर्मल भी रहे, 80 के करीब भी रहे, वो भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल भी रहे, you can imagine that is the vessels are less compliant, so there will be this pulse pressure will be tremendous। It is inversely proportional to the compliance। compliance कम होगी है, then there will be rise in the pulse pressure। वो 120 के बजाय ये 160 पे आ गया, तो 80 pulse pressure has increased to 80। सिस्टोलिक प्रेशर तो बढ़ गया है, डायस्टोलिक प्रेशर उतना ही। सिस्टोलिक प्रेशर हैज गॉन टू 160 बिकॉज ऑफ लेस कंप्लायंस। कंप्लायंस कम है तो ब्लड वहां पे सिस्टोलिक प्रेशर ट्रेमेंडसली राइज करता है। वही 70 ml ऑफ ब्लड पुश हो रहा है या 80 ml ऑफ ब्लड पुश हो रहा है, लेकिन वेसल आर नॉट डिस्टेंसिबल, तो सिस्टोलिक प्रेशर विल नॉट बी 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इट विल बी 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और डायस्टोलिक प्रेशर अगर नॉर्मल भी हो तो डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज ट्रेमेंडस। दैट इज 40 के बजाय इट इज कितना हो गया? 80 और 160 के दरमियान 80 का फर्क है। पल्स प्रेशर इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और वो अगली कंडीशन दैट इज ये वाली एआर्टिक स्टेनोसिस, देखें कितना कम हो गया, उसमें हमने देखा, मैं वापस जाके देख लें। एआर्टिक स्टेनोसिस में देयर इज फॉल इन द पल्स प्रेशर। तो एआर्टिक स्टेनोसिस में क्यों कम हुआ है? बिकॉज योर valve is narrow।
वो मुश्किल से ब्लड इज पुश्ड इनटू द एआर्टा, थोड़ा ब्लड पुश हो रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर इज विल बी वेरी, सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा सा 120 पे नहीं जा रहा, ये 100 पे जा रहा है, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 भी हो तो इतना सा पल्स प्रेशर रह गया स्मॉल कर्व, ये तो नॉर्मल कर्व इतनी है और उसकी वो कर्व इतनी छोटी रह गई है, पल्स प्रेशर इज ट्रेमेंडसली रिड्यूस्ड इन एआर्टिक स्टेनोसिस, ये नॉर्मल है, फिर ये तो नॉर्मल ही होगी। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जिसमें वो उसमें क्या हुआ था, द ब्लड वाज शंटेड फ्रॉम द एआर्टा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, तो प्रेशर उसमें जीरो, डायस्टोलिक प्रेशर वाज वेरी लो, इसमें वेरी लो, इसमें भी लो था, 80 के बजाय ये 40 पे दिखाया हुआ है, वेरी लो प्रेशर, और ये ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा था कि ये ब्लड वाज कमिंग बैक टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, नॉर्मल फिलिंग भी हो रही है और ये भी फालतू ऐड हो रहा है, व्हेन दिस स्ट्रोक वॉल्यूम इज ट्रेमेंडसली इंक्रीज एंड इसका सिस्टोलिक प्रेशर इज हियर, और इसमें आप पल्स प्रेशर का डिफरेंस 160 40 का पल्स प्रेशर इज 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पल्स प्रेशर, इतना बड़ा कि 40 और 160 का डिफरेंस 120 आएगा। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में एआर्टिक प्रेशर कर्व पल्सेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी हो जाएगी। और आखिरी कंडीशन जो हमने एआर्टिक रिगर्जिटेशन में देखी थी, उसमें क्या हो रहा है, ब्लड इज बीइंग पुश्ड इनटू द एआर्टा, और वो पुश हुआ है तो प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर वो एआर्टिक वो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा है, वो ज्यादा पुश होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर इज अगेन वेरी हाई, 160 170 180 सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा है, और लेकिन डायस्टोली में ब्लड जब जाता है ब्लड गोज बैक इनटू द वेंट्रिकल, उसकी वजह से एआर्टा का प्रेशर जीरो पे आ गया, दिस इज यू कैन सी द प्रेशर इज जीरो इन एआर्टिक, ये जो नॉर्मल 80 पे होना चाहिए जीरो पे आ गया, उसमें जीरो पे आ गया, और ये ब्लड जो वापस गया है इनटू दी वेंट्रिकल और ऊपर से भी फिलिंग हो रही है, तो दी लेफ्ट वेंट्रिकल इज बीइंग फिल्ड विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 10 to 120 ml होता है, और इसमें इट मे बी 200 ml, कि ये भी ऊपर से भी नॉर्मल फिलिंग भी हो रही है और ये ब्लड भी वापस जाके टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोली इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मे बी डबल देन नॉर्मल, so that when double blood is pushed systolic pressure will be very high and diastolic pressure will be very low because of the backflow of the blood. So these are the abnormal aortic pressure curve, ये तो दोनों नॉर्मल है, abnormal aortic pressure curves in these conditions. So this pulsation of the arteries depend upon these two important factors, उनको हमने अप्लाई किया। एक और नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेकिन जरा सी बात हम इस पे भी कर लेते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ पल्स, दिस प्रेशर पल्स, आगे ट्रांसमिशन कैसे होती है ये तो हमने देखी है। सिस्टली में देयर इज डिस्टेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द एआर्टा, डिस्टेंड कर दिया, इनर्शिया ऑफ द ब्लड है, वहां ब्लड पड़ा हुआ है, मोर ब्लड पुश हुआ है तो एक्सपेंशन होते हैं। दिस डिस्टेंशन वेव ट्रेवल्स, अब ये किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंशन वेव्स की, प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो एआर्टा का डिस्टेंशन हुई है उसकी फिजिकल एक्सपेंशन हुई है, डिस्टेंशन हुई है, दैट प्रोड्यूसेस अ वेव इन द वॉल ऑफ द एआर्टा दैट ट्रेवल्स along the aorta, इसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंशन वेव की ट्रेवल की, ट्रांसमिशन ऑफ दिस वेव velocity gradually increases in smaller and smaller vessel, ये जो आगे जाते हैं उनके ये velocity of this physical distension जो हो रही है, ये जो travel कर रही है wave, that will be increasing, velocity of transmission of this pulse wave is inversely proportional to distensibility, जितनी ज्यादा distensibility होगी उतनी velocity कम होगी। आगे हम देखेंगे more muscular arteries आ रही हैं, उनकी डिस्टेंसिबिलिटी अच्छी नहीं है, वो आप देखें ना उनमें थिक मसल्स हैं, तो उनकी तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसमें, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, उनकी डिस्टेंसिबिलिटी कम हो रही है, वेलोसिटी ऑफ दिस फिजिकल पल्स जो पैदा हो रही है दैट इज इंक्रीज। एआर्टा में दिस वेलोसिटी इज 3 to 5 meters per second, वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज 0.33 सेंटीमीटर, आप देख लें, दिस इज ट्रेमेंडस डिफरेंस। ये और बात है, जो हमने ब्लड का फ्लो देखा था वो तो हमने मेजर किया हुआ था, वेलोसिटी ऑफ ब्लड इन दी एआर्टा इज ओनली 33 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन जो वेव पैदा हो रही है दैट इज ट्रेवलिंग एट 3 to 5 meters per second,
ये क्या चीज है? वो जो डिस्टेंशन की वेव पैदा हुई थी इस पाइप में, इस वॉल ऑफ द वेसल में जो डिस्टेंशन हुई थी, दैट विल ट्रेवल। वो उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है मसल में। आप किसी जगह पे डिस्टेंस, तो दैट डिस्टेंशन विल ट्रेवल, वो मच फास्टर देन द ब्लड स्पीड। ब्लड की स्पीड तो बहुत थोड़ी है, ये डिस्टेंशन वेव बहुत तेजी से जाती है जो आगे ट्रेवल भी कर जाती है। एआर्टा में इतनी है, लार्ज आर्टरी में और उससे भी ज्यादा है। क्यों? वो आगे लिखा हुआ है ना, ट्रांसमिशन वेव वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन स्मॉलर आर्टरी, क्योंकि देयर इज मोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंसिबिलिटी। डिस्टेंसिबिलिटी वहां कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। और स्मॉलर आर्टरीज में और भी बढ़ गई है, क्योंकि ज्यादा थिक हो गया, उनकी डिस्टेंसिबिलिटी और कम होगी, तो वेलोसिटी ट्रेमेंडसली इंक्रीज होगी। तो ये वाली जो वेव है, ये जो डिस्टेंशन वाली वेव है, दैट ट्रेवल्स। इसको मैंने कहा बहुत ज्यादा अहमियत इसकी नहीं है, लेकिन दिस इज देयर, डिस्टेंस होके दिस आल्सो प्रोड्यूसेस, इसका इट इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द पल्स। पल्स इसलिए कहते हैं ना, जो ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता हार्ट, वी फील द पल्स। ब्लड तो नहीं पहुंचता यहाँ इतनी तेजी से, लेकिन दिस वेव ट्रेवल्स वेरी क्विकली। ये जो हम रेडियल पल्स फील करते हैं कि ये ब्लड यहाँ पे पहुंच जाता है, जो स्ट्रोक वाली यहाँ से पुश हुआ था, उसकी वेलोसिटी तो हमने देखा इतनी ज्यादा नहीं है। ये दिस वेव विच ट्रेवल्स वेरी फास्ट, so this is the wave. Now this damping of the pressure pulse in the smaller vessels, जैसे हमने पहले डायग्राम में कहा था कि पल्स प्रेशर होता है, देयर इज पल्सेशन, पल्स स्टाइल फ्लो होता है, लेकिन एज वी मूव फ्रॉम द एआर्टा टू स्मॉलर आर्टरीज, कैपिलरीज में देयर इज नो पल्सेशन। उसकी बात कर रहे हैं। डैम्पिंग, ये डैम्प कैसे होते हैं? पल्सेशन इज रिड्यूस्ड इन पेरिफेरल वेसल, ये पहले हमने बात की है, डायग्राम भी देखी है, दोबारा आ रहे हैं। इसका काज क्या है? ड्यू टू, काज इसका क्या है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। एआर्टा तो रेजिस्टेंट वाला वेसल नहीं है, जो और बिगर वेसल आर्टरीज हैं वो भी रेजिस्टेंट, आगे आर्ट्रियोल्स हैं, उनका ट्रेमेंडस रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? ब्लड को आगे नहीं जाने देती, इम्पेडिमेंट टू द ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो डिस्टेंशन भी कम होगी ना, डैम्पिंग हो गई नेचुरली। एआर्टा तो एक्सपेंड होगी थी, यहाँ पे ब्लड को जाने के लिए रुकावट है, तो एक्सपेंशन कम हो, डिस्टेंसिबिलिटी, so less blood conductance, increasing resistance in the smaller vessel, less blood is conducted। ये पहले भी हमने बात की थी, it is blood conductance is inversely proportional to the resistance। resistance जितना ज्यादा होगा, less volume of the blood will be conducted, तो उसमें pulsation भी कम होगी, less pulsation, that's why pulsation is reduced in the peripheral vessels। आगे देखें, इंक्रीज कंप्लायंस, आगे कंप्लायंस बढ़ती जाती है, बिकॉज अगर देयर इज इंक्रीज कंप्लायंस, अगर किसी जगह पे हो, इंक्रीज रेजिस्टेंस हो, तो देन ड्यू टू इंक्रीज कंप्लायंस भी है। पेरिफेरल में वेसल का टोटल वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। एआर्टा में जितना ब्लड पुश हुआ था उसका टोटल वॉल्यूम इतना था। एक सेंटेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, स्मॉल ब्लड वेसल, लेस डिस्टेंसिबिलिटी बट मोर वॉल्यूम, हैज गॉट मोर कंप्लायंस। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। हम आगे जितना आगे जा रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस आर देयर, तो टोटल वॉल्यूम इज मोर, उसकी टोटल कंप्लायंस विल बी मोर, so there is increased compliance। आगे एआर्टा के बजाय उसकी 10 ब्रांचेस, उसकी अगले 50 ब्रांचेस, आगे आर्टरियोल की हजारों ब्रांचेस, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो उनमें अकोमोडेट हो रहा है वो ज्यादा है, तो उसकी वजह से कंप्लायंस ज्यादा है। तो इंक्रीज कंप्लायंस मींस मोर ब्लड कैन बी अकोमोडेटेड देयर, इंक्रीज ब्लड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पल्स। इतना ज्यादा बड़ा एरिया है, उनमें पल्स पैदा करने के लिए ये जो 70 ml पुश हुआ है उसका कोई हैसियत ही नहीं रहती। मोर ब्लड इज रिक्वायर्ड टू वहां पे पल्स पैदा करने के लिए। सो दैट इज द इंक्रीज डिस्टेंसिबिलिटी, इंक्रीज कंप्लायंस, दैट कॉजेज द डिक्रीज पल्सेशन। डिग्री ऑफ डैम्पिंग, ये जो डैम्प हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इन दोनों वजह से बढ़ रही है ना, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ द डैम्पिंग इज। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा कंप्लायंस होगा, उतनी ज्यादा डैम्पिंग होगी। डैम्पिंग मीन कि पल्स खत्म होती जाएगी, पल्स कम होती जाएगी। एआर्टा में इतनी पल्सेशन है, आगे पल्सेशन कम होते 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 आर्टरियोल्स में ना होने के बराबर, और कैपिलरी में तो होती नहीं है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आगे रेजिस्टेंस ज्यादा होता जाता है और कंप्लायंस भी आगे ज्यादा होती जाती है, तो डैम्पिंग होती जाती है, पल्स खत्म होती जाती है।
पल्स फील ही नहीं होती। तो डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंट वेसल में ये खत्म ही हो जाती है ऑलमोस्ट, और कंप्लायंस भी वहां पे बहुत ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ वेसल, टोटल वॉल्यूम वहां पे ज्यादा है, तो और कंप्लायंस डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। टोटल वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा मोर कंप्लायंट होंगे। तो ये फिर दोबारा डायग्राम वो आ गई कि पल्सेशन एआर्टा में ऐसे है, और फेमोरल आर्टरी में अच्छी खासी पल्सेशन है, बड़ी आर्टरी है ना, और रेडियल आर्टरी में फेमोरल आर्टरी की निस्बत कम है, लेकिन इट इज स्टिल पल्सेशन जो हम रेडियल आर्टरी फील करते हैं। और उससे आगे अगर आर्टरियोल में जाएंगे ना होने के बराबर पल्सेशन है, और कैपिलरी में तो बिल्कुल सीधी होगी लाइन, देयर इज नो पल्स स्टाइल फ्लो। पल्स डैम्पिंग, ये डैम्पिंग हो रही है, आस्ता आस्ता डैम्पिंग हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और कंप्लायंस बढ़ रही है जो आगे हम जा रहे हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट है, उस पर डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस और कंप्लायंस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो दिस विल कॉज द डैम्पिंग, यानी पल्स खत्म होती जाएगी। डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे खत्म कर सकता था, लेकिन एक दो बातें, ये ब्लड प्रेशर को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे आगे, बहुत 3 4 5 लेक्चर के बाद उसका नंबर आएगा। लेकिन चूंकि इसका रोल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी आइडिया हो जाना चाहिए ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं आपको आइडिया है, लेकिन हम इसको दोहरा लेते हैं। ब्लड प्रेशर, इसको हमने पहले भी डिफाइन किया था, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड अगेंस्ट द एनी यूनिट एरिया ऑफ द ब्लड वेसल। पहले भी डिफाइन किया है, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में भी मेजर कर सकते हैं, ये पहले मैंने बताया हुआ है। 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर एंड मर्करी का डिफरेंस 13.6 पे मैंने पहले बताया हुआ है, इसलिए इनका तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो उसकी मेजरमेंट के लिए हम करते क्या है, आइडिया तो है कि आप बीपी अपरेटस देखते हैं, लेकिन आइडिया देखें, एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट ये तरीका है। क्या करें हम, आर्टरी के अंदर हम एक कैनुला डालें, उसको एक ट्यूब के साथ कनेक्ट करके मानोमीटर के साथ कनेक्ट करें, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी। ये जो हम बाहर से कफ लगा के करते हैं, दिस इज इनडायरेक्ट। एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर तो होगी, उस आर्टरी के अंदर आप एक कैनुला डाल दें, उसको आप यू शेप ट्यूब जिसमें मर्करी पड़ा हो, कितना मर्करी का कॉलम रेज होता है उसमें मर्करी का कॉलम, और वहां से हम मेजर करेंगे कि कितना प्रेशर है, ये एग्जैक्ट में। लेकिन हम पेशेंट के साथ, हर पेशेंट के साथ तो ये नहीं कर सकते कि उसका ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम ऐसा काम करें। एग्जैक्ट मेजरमेंट तो ऐसे ही है, कैनुला इंसर्टेड इनटू द आर्टरी एंड कनेक्टेड टू अ मानोमीटर। ये भी वो है, उसी मानोमीटर के साथ अटैच करके वी कैन रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक डायस्टोलिक में ये विल बी रिकॉर्डेड लाइक दिस, ऊपर नीचे होगा सिस्टोलिक प्रेशर इतना तो डायस्टोलिक इतना। लेकिन ये डायरेक्ट मेजर हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसको आपने शायद प्रैक्टिकल के, आपने अगर देखा हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो आज हम सीख लेते हैं। दैट इज अस्कल्टेटरी मेथड से हम करते हैं। वी यूज अ स्फिग्मोमानोमीटर, ब्लड प्रेशर अपरेटस, एंड अस्कल्टेटरी मेथड, स्टेथोस्कोप के जरिए से हम कुछ साउंड सुनते हैं और ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये ब्लड प्रेशर कैसे आता है, ये हमने वी अप्लाई अ न्यूमेटिक कफ, न्यूमेटिक कफ बीपी अपरेटस का ये जो इन्फ्लेट करने वाला, दिस इज न्यूमेटिक कफ, वी अप्लाई अ न्यूमेटिक कफ ऑन एन आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी के अराउंड हम इसको लगा देते हैं, और if उसको हम we can increase the pressure, we can inflate it and we can produce a pressure in this cuff, and वो क्या करेगा, pressure around the vessel, जब इसको हम pressure बढ़ाते जाएंगे, pressure inside the artery is say 120 millimeter of mercury। अगर बाहर के कफ में हम प्रेशर बढ़ाते हैं 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो रिजल्ट क्या होगा, हमने आर्टरी के अराउंड एक कफ बांध दिया जिसने ब्लड फ्लो बंद कर दिया। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द कफ इज मोर देन द प्रेशर इनसाइड द वेसल, वो तो बंद हो जाएगा। बाहर से हमने उसको पकड़ लिया, दबा लिया, जोर से दबा लिया, ज्यादा फोर्स से दबाएंगे तो इट विल बी ऑब्लिटरेटेड। तो ये होता है when your cuff pressure is more than the systolic pressure inside the vessel, blood flow is stopped। अगर प्रेशर यहां पे है, blood flow is stopped, वहां पे blood flow बंद हो गया। You place a stethoscope on the distal part of this vessel, ये जो ब्रेकियल वेसल यहां पे आप उसके जो इसके बाद है, you place it, there is no blood flow, कोई साउंड नहीं होनी चाहिए,
वैसे भी पहले उससे पहले ये बात करूं, ये बात आई हैव मेंशनड इट, इफ यू प्लेस अ स्टेथोस्कोप ऑन एनी वेसल नॉर्मली देयर इज नो साउंड. क्यों साउंड नहीं है? ब्लड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, लेमिनर फ्लो, देयर इज नो टर्बुलेंस, देयर इज नो साउंड. किसी भी वेसल पर रख के आप देखेंगे देयर इज नो साउंड. साउंड कब पैदा होगी? जब ब्लड फ्लो इज टर्बुलेंट. हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में. So when we apply this, pressure is more than the systolic pressure. We have placed a stethoscope here and we will listen. No sound, no sound will be heard. कोई आवाज नहीं आएगी. Then you deflate it. उसका वेल थोड़ा सा खोलते हैं तो ग्रेजुअली प्रेशर फॉल्स. हमने प्रेशर 130, 160, 200 तक ले गए, तो उसको फॉल करेंगे. व्हेन द प्रेशर से द आर्टरी के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर 120 है, इफ द प्रेशर इन द कफ बिकम्स 121, आर्टरी इज स्टिल क्लोज्ड, ब्लड प्रेशर ज्यादा है. व्हेन इट इज 120, दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो गया, इसका मतलब है इस वक्त ब्लड फ्लो करेगा. 120 दोनों तरफ बराबर हो जाए, ब्लड फ्लो विल बी देयर. सो देयर विल बी 120, 119 पे भी प्रेशर यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा. लेकिन व्हेन हार्ट इज इन सिस्टली, 120 प्रेशर वेसल में तो ड्यूरिंग सिस्टली होगा. When heart goes into diastole, pressure inside the vessel falls. वो तो 80 पे चला जाएगा या उससे भी नीचे चला जाएगा. तो उस वक्त तो प्रेशर वहां पे हमने 115 रखा हुआ है फर्ज करें, लेकिन अंदर डायस्टोलिक प्रेशर इज 80, तो वो तो बंद हो जाएगा. कफ में प्रेशर 115 है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, तो ये तो बंद हो जाएगा. इसका क्या मतलब है? ब्लड हेयर व्हेन द प्रेशर inside the cuff is below systolic pressure but above diastolic pressure. डायस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा हो एंड सिस्टोलिक प्रेशर से कम हो, तो क्या होगा? ड्यूरिंग सिस्टली ब्लड विल फ्लो, ड्यूरिंग डायस्टोली नो फ्लो. और तो इसकी वजह से व्हेन ब्लड फ्लो अकर्स ड्यूरिंग सिस्टली एंड इट इज स्टॉप्ड अगेन, ब्लड फ्लो इज नॉट स्मूथ. This is turbulence here in this vessel. Blood flow आ रहा है और बंद हो रहा है, तो there is mixing of the different layers of the blood. So that is the whirls are produced, eddy currents are produced, or the turbulence is produced, and that turbulence produces sound. Those sounds are known as crotocop sounds. इनका नाम हमने रखा हुआ है. These sounds are produced. These sounds are known as crotocop sounds. वो sound कब शुरू होगी? When the pressure in the cuff and the is at 120 millimeter. 120 का means systolic pressure. अगर किसी का 140 है तो वहां पे साउंड सुनाई देगी, अगर किसी का 100 है तो वहां पे साउंड शुरू होगी. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड इट अपीयर्स एट 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. नॉर्मल की बात कर रहे हैं. एंड इट साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो. सिस्टली में ब्लड आता है, डायस्टोली में नहीं आता. वी आर मूविंग, वी आर डिफ्लेटिंग इट. कम प्रेशर कम करते करते साउंड अच्छी बढ़ रही है. टर्बुलेंस ज्यादा हो रहा है ना, कि ज्यादा टाइम मिल रहा है, यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा हो गया, मोर ब्लड फ्लो इज देयर, तो यहाँ पे साउंड बढ़ती जाएगी. शुरू में मामूली आवाज आती है. इसकी फेजेस हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दी क्रोटोकॉप साउंड फेजेस. 5 फेजेस होती हैं, बार 4 गिनते हैं, 4 फेजेस होती हैं. 4th फेज को डैम्पिंग दी मफलिंग का साउंड कहते हैं. 5th फेज ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द साउंड होती है. सो साउंड विल अपीयर व्हेन द प्रेशर इनसाइड द कफ, जो हमारा डायल या हमारा मर्करी वाला मीटर बता रहा होगा कि प्रेशर कितना है. तो जब प्रेशर इनसाइड द कफ इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर, साउंड विल अपीयर. एंड वो साउंड अगर आपने सुनी हुई है तो गाने, so sound will appear and it will gradually increase and then it will again decrease and it will disappear. कब disappear होगा? When the pressure inside the cuff is even below than the डायस्टोलिक प्रेशर. आपका क्या मतलब है? अब सिस्टली डायस्टोली में ब्लड दोनों में फ्लो कर रहा है. स्मूथ लेमिनर फ्लो और स्टीम लाइन फ्लो जब आ जाएगा, देयर विल बी नो टर्बुलेंस एंड साउंड विल डिसअपीयर और मफल्ड. डिसअपीयर, आप चलो डिसअपीयर आसानी के समझेंगे. व्हेन द साउंड विल डिसअपीयर, उस पॉइंट को नोट करेंगे. व्हेन द साउंड इज डिसअपीयर, सो दैट्स हाउ अस्कल्टेटरी मेथड ऑफ द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, एंड दीस साउंड्स आर नोन एज क्रोटोकॉप साउंड्स. That is how we measure the blood pressure. ये देख लें. अब ये इसको डायग्रामेटिकली मैंने, और ये मैंने डायग्राम शायद गाइडेंस से नहीं है, मैंने शायद कहीं गूगल से उठाई है या किसी और बुक से उठाई, गूगल से शायद उठाई हुई है. दिस इज व्हेन द प्रेशर इनसाइड द कफ, ये कफ है,
ये हमारी ब्लड वेसल है अंदर, जिसके कफ में हमने प्रेशर सिस्टोलिक से ऊपर रखा हुआ है. देयर इज नो ब्लड फ्लो बियॉन्ड दिस ऑब्लिटरेशन. ब्लड फ्लो नहीं है, देयर विल बी नो साउंड. और जब प्रेशर इनसाइड इज, कफ प्रेशर इज बिटवीन 80 and 120, तो ओनली सिस्टली के दौरान ब्लड फ्लो विल अकर. डायस्टली में ब्लड फ्लो विल नॉट अकर, एंड ब्लड फ्लो इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द वेसल विल बी टर्बुलेंट. ये नजर आ रहा है टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो. तो टर्बुलेंट होगा, साउंड होगी. एंड व्हेन दी, इसमें ये साउंड प्रोड्यूस होगी, वही साउंड जो पिछली डायग्राम में हमने देखी है, दी साउंड. एंड व्हेन द प्रेशर इज बिलो डायस्टोलिक, कफ का प्रेशर हमने डिफ्लेट करके बिलो डायस्टोलिक कर दिया है, द ब्लड फ्लो बिकम्स continuous laminar blood flow, smooth blood flow, and there will be no sound, and sound will disappear. That's how we measure the blood pressure. सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर मैंने जिक्र किया था. पल्स प्रेशर के अलावा एक और प्रेशर आपने याद रखना है, समझना है, मीन आर्टेरियल प्रेशर. ये दरमियान वाली कर्व जो है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है. ये मीन आर्टेरियल प्रेशर है, लेकिन अभी मीन आर्टेरियल प्रेशर को मैंने डिफाइन नहीं किया. सिस्टोलिक प्रेशर को एज के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है. प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एज के 20 पर तकरीबन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 30 ईयर के एज पे भी तकरीबन इतना है, 40 पे इतना है, 60 पे इट इज अबाउट 150. एज के साथ सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है ना. आमतौर पर रफ आइडिया इज 100 प्लस एज प्लस 100, इतना अगर सिस्टोलिक प्रेशर है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं. क्या मतलब है? अगर किसी बंदे की एज 60 है, उसका ब्लड प्रेशर अगर सिस्टोलिक 150 160 है, इट इज ओके, ये नॉर्मल है. डायस्टोलिक प्रेशर भी इसी तरह 20 पे 80 के करीब है, फिर ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन इट शुड बी बिलो 100 से नीचे होना चाहिए नॉर्मल प्रेशर को. 100 से डायस्टोलिक प्रेशर नीचे, ऊपर हो तो उसको हम वी लेबल दैट एज हाइपरटेंसिव. सो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है? ये सेंटर वाली सिस्टोलिक डायस्टोलिक एज के साथ रिलेशन में हमने बोल दिया. और ये भी मैंने जिक्र कर दिया सिस्टोलिक प्रेशर क्यों बढ़ता है. आर्टरीज बिकम रिजिड, इलास्टिसिटी कम होती जाती है विद द एडवांसिंग एज, तो डायस्टोलिक प्रेशर पे भी फर्क पड़ेगा. मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? मीन आर्टेरियल प्रेशर इज नॉट द एवरेज ऑफ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. एवरेज किसको कहते हैं? 120 and 80 दोनों को जमा करें, इट विल बी 200 डिवाइड बाय 2, इट विल बी एवरेज. एवरेज तो ये होता है. दो फिगर का एवरेज क्या होगा? दोनों को जमा करो डिवाइडेड बाय 2. चार फिगर का एवरेज क्या होगा? चारों को जमा करो डिवाइडेड बाय 4. तो इसका हम एवरेज प्रेशर नहीं होता सिस्टोलिक, इसका मीन इज समथिंग डिफरेंट. मीन क्यों डिफरेंट है? मीन एमएपी, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज नॉट द एवरेज ऑफ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. इसको हम ऐसे मेजर नहीं करते 120 डिवाइडेड बाय 80 ना प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2. नो, दिस इज एवरेज. एवरेज नहीं होता. मीन आर्टेरियल प्रेशर डिफरेंट है. क्यों? सिस्टोलिक प्रेशर जिसको हम बोल रहे हैं, दैट इज ड्यूरिंग सिस्टोली. डायस्टोलिक प्रेशर इज ड्यूरिंग डायस्टोली. सिस्टोली का टाइम कितना है? सिस्टोली का टाइम 0.3 सेकंड है. कार्डिक साइकिल आप याद रखें. सिस्टोलिक पीरियड इज ओनली 0.3 सेकंड आउट ऑफ कार्डिक साइकिल, आउट ऑफ 0.8, एंड डायस्टोलिक पीरियड इज 0.5 सेकंड. वो डबल है इससे. डायस्टोलिक पीरियड इज डबल. इसका क्या मतलब है? 80 के करीब जितनी प्रेशर रहता है फॉर 0.5 सेकंड्स, और 120 के करीब प्रेशर रहता है जस्ट फॉर 0.3 सेकंड. तो एवरेज तो नहीं निकालना चाहिए. इसको ड्यूरेशन को हमने वजन करना है. डायस्टोलिक प्रेशर रिमेन्स ऑलमोस्ट डबल देन द सिस्टोलिक टाइम. सिस्टोलिक टाइम 0.3 है और डायस्टोलिक टाइम 0.5 है. 0.6 कर लें, डबल हो जाता है 0.6 कर लें तो. सो डायस्टोलिक प्रेशर को ज्यादा अहमियत देंगे हम मेजरमेंट ऑफ द मीन आर्टेरियल प्रेशर. सो मीन आर्टेरियल प्रेशर इज नॉट द एवरेज बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन द टाइमिंग्स ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर एंड टाइमिंग्स ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर. टाइमिंग ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर इज 0.3, टाइमिंग ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज डबल देन दैट. डायस्टोलिक प्रेशर रिमेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. ये डबल है उसका टाइम. तो इसलिए हम मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम मेजर करने के लिए 2 डायस्टोलिक प्रेशर, डबल उसको वैल्यू देते हैं. 2 डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1 सिस्टोलिक प्रेशर. इनको अब 3 फिगर्स हो गई है ना, इनको 3 पर डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 3. 2 डायस्टोलिक प्रेशर यानी 80 प्लस 120. 80 को 2 दफा जमा करेंगे और फिर 3 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 फिगर्स हो गई हैं. दिस विल गिव अस द सिस्टोलिक प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर. ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं.
अब कैलकुलेट करें 120 plus 80 plus 80. 120, 80, it is 280. 280 divided by 3, it is about 93.33. तो पल्स कितना होगा मीन आर्टियल प्रेशर 93.33. मीन आर्टियल प्रेशर विल बी, इसका मीन सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कैसे है मीन, आप देखें वो डायस्टोलिक को ज्यादा टाइम दिया हुआ है, उसकी करीब है, डायस्टोलिक के करीब है ये प्रेशर. इट इज मोर टुवर्ड्स द डायस्टोलिक, क्योंकि डायस्टोलिक का टाइम डबल है, तो इसके ये ज्यादा देर रहेगा, डायस्टोलिक के करीब रहेगा मीन आर्टियल प्रेशर. सिस्टोलिक से दूर होगा वो, उसको इसको जितना टाइम देंगे डबल उसको वैल्यू देंगे. तो डायस्टोलिक प्रेशर को डबल प्लस 1 सिस्टोलिक प्रेशर को डिवाइड करेंगे, तो दैट विल गिव अस, मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया. अगर 120 80 का फिगर याद है तो इससे मीन आर्टियल प्रेशर 120 प्लस 80, दिस इज 200 प्लस मोर 80, इट इज 280. 280 डिवाइडेड बाय 3 पे डिवाइड करें तो 93.33 आता है. 280 डिवाइडेड बाय 3. सो पल्स प्रेशर इतना होना चाहिए. इसका और फार्मूला भी है, और फार्मूला ये है कि डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर 80, पल्स प्रेशर कितना होगा 40. 40 का 1/3, 40 by 3, इट इज 13 point something, and it is again 80 plus 13 point something, 93.3. तो मीन आर्टियल प्रेशर ऐसे कैलकुलेट करते हैं. मीन आर्टियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर. दोनों फार्मूला करेक्ट है मीन आर्टियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, दोनों फार्मूला ठीक है, एक ही जवाब आएगा दोनों में. सो दिस इज हाउ वी मेजर दी पल्स प्रेशर. हम पल्स प्रेशर को मेजर नहीं करते, कैलकुलेट करते हैं. मेजर तो हम सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, मेजर नहीं करते, कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले पर. ये मेरा ख्याल में आखिरी स्लाइड आ रही है. इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन दी ब्लड प्रेशर. एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर विद द एडवांसिंग एज, अभी जिक्र किया हमने, बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल ब्लंटिंग ऑफ द. अच्छा, ये दूसरी बात आ गई है. अभी तक हमने जिक्र किया है कि एज के साथ ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है. एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है. वेसल विद द एडवांसिंग एज दे बिकम मोर रिजिड, पल्साइल नहीं, डिस्टेंसेबल कम हो जाती है, उनकी कंप्लायंस खराब और कम हो जाती है. सो देयर इज एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर. वो जो जैसे मैंने कहा कि एज प्लस 100 तक सिस्टोलिक प्रेशर हो तो खैर है, इतनी. इससे ज्यादा हो तो दैट इज एबनॉर्मल, वो फिर खतरनाक हो सकता है, उसको ठीक करना है. उसकी और काजेज है ज्यादा होने की ब्लड प्रेशर. एक और वजह विद द एडवांसिंग एज ये है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लिखा हुआ है ग्रेजुअल ब्लंटिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म. ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के 8 10 12 तरीके हैं. ब्लड प्रेशर हमारा कैसे कंट्रोल होता है. देयर आर मेनी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म. दोज मैकेनिज्म ग्रेजुअली बिकम लेस शार्प. ब्लंटिंग का लफ्ज, ब्लंट किसको कहते हैं, शार्प के अपोजिट. चाकू अगर ब्लंट हो गया, कुंद हो गया, उर्दू में कुंद कहते हैं. तो ब्लंट, तो ये दिस आवर रिफ्लेक्सेस आर ब्लंटेड, वो भी शार्प नहीं रहते विद द एडवांसिंग एज. तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले निजाम भी अपने ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा शार्प नहीं रहते. तो ब्लंटिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स विद द एडवांसिंग एज, एक काज उसका ये है. और स्पेशली रीनल फंक्शंस विद द एडवांसिंग एज, गुर्दे आस्ता आस्ता खराब होते रहते हैं. तो स्पेशली रीनल फंक्शन डिसफंक्शन, लॉस ऑफ इलास्टिक ब्लड वेसल, ये हमने पहले नंबर पर जो अब तक हमने पढ़ा है. लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैंने अंडरलाइन किया कि ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे. सो दी लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ब्लड प्रेशर उसमें एलिवेट हो सकता है विद द एडवांसिंग एज. सो दैट्स, ये कुछ बातें ब्लड प्रेशर की हमने बात करनी थी. एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेन्स के फंक्शन डिस्कस करें, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसका रोल करेंगे. एंड होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, यू आर फॉलोइंग मी. इफ यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम, यू कैन मोस्ट वेलकम, you can question, you can query in the my comment section में आप डाल दें, मैं उसको देख के अगर सवाल जवाब होगा तो मैं दूंगा. तो फिर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें लोगों तक. थैंक यू वेरी मच. होप टू सी यू इन नेक्स्ट